Today's session is on sustainability sector. We are not going to cover the whole sector, but most confusing parts of it. We'll take two segments, starting with okay. So how the whole landscape looks like. Sustainability means any, let's say, career, business, or institution which is working towards the environment, social justice, or economic equity. So इसके अंदर based on business models, there are five major subsectors. One is green transport, which is everything related to EV, electric vehicles, and so on. Then there's renewable energy, इसके अंदर social क्या कहते हैं solar energy, hydrogen based energy, and उससे related सारे business models आ जाते हैं. Then there's infectious diseases related to women health, antiviral therapeutics. Then the two segments we are going to cover today is one is circular economy. जिसके अंदर we will learn about EPR and how the whole system works. Second is air pollution management tech, जिसके अंदर we will look at carbon credit trading system. Now, starting with EPR policy and its growth in India. So EPR policy basically means extended producers responsibility, जिसके अंदर basically the government is trying to shift the responsibility of recycling waste from themselves on the producers, जहाँ से पूरी chain start होती है. So producer PIBOs includes producers, importers, and brand owners. They are held responsible for collection, recycling, and safe disposal of all products that they sell, especially after consumer use. अब दे कैन डू दिस बाय टू वेज. या तो वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बनाते समय ताकि वेस्ट अपने आप ही कम हो जाए फ्रॉम द स्टार्ट, और दे कैन रिसाइकल द वेस्ट दे जनरेट. अब इसमें नॉट नेसेसरली दे डोंट ट्रैक ऑल द वेस्ट जो उन्होंने स्पेसिफिकली बनाया है. बेसिकली एक परसेंटेज, लेट्स से इफ आई एम अ FMCG कंपनी जिसके प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, प्लास्टिक पैकेजिंग है, तो उसमें से 70% पैकेजिंग जो है वो मुझे रिसाइकल करनी है. तो आई हैव टू शो कि मैंने 70%, लेट्स से अगर मैं 100 किलो बना रही हूँ तो उसमें से 70 किलो मुझे प्लास्टिक रिसाइकल करके उसका प्रूफ दिखाना है. सो दैट्स हाउ दिस वर्क्स, सिंपल लेमन लैंग्वेज में. Talking about why it's growing so much, generally क्या होता है in these sustainability sectors, there would be an international framework or international policy which is pushing for change. That change gets adopted by Indian government और वो यहाँ पे legislation push करते हैं. तो for EPR, it's ESG and SDG. SDG we know UN के Sustainable Development Goals 17 जो होते हैं. ESG is Environmental, Social and Governance Framework. It's a global framework जो companies को बताता है कि how to do ethical and responsible investing, कैसे आपको अपनी responsibility और risk manage करना है उससे related. Now this is growing a lot, जिसकी वजह से there is regulatory push in India. प्लास्टिक वेस्ट एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अमेंडमेंट हुआ 2023 में, उससे EPR compliance became mandatory for companies. Second, SEBI also started a BRSR report compliance. So this is a very big compliance. इसके अंदर EPR भी cover होता है. There's also greenhouse gases commissions भी cover होते हैं. Lots of things. This is to be followed by top 1000 listed companies on both the stock exchanges. This is followed by market cap. FY23 से सबको ये report file करनी है. इसके अंदर पूरा compliance है. This puts pressure on large brands like, let's say, Unilever, HUL, Samsung, Tata, who have a very wide waste footprint pan India, जिसकी वजह से we have a high demand for organized recyclers, collection partners, shredders, etc. इधर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि देयर इज अ वास्ट अनटैप्ड मार्केट बिकॉज इंडिया के अंदर अभी हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हद तक हमारे पास नहीं है. EPR पॉलिसी 3 तरह के वेस्ट पे अप्लाई होती है, विच इज प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट एंड बैटरी वेस्ट. Now battery waste in a way is just a part of e-waste, पर उसके अंदर basically we cover our lead acid batteries जो vehicles में use होती है, our EV batteries जो lithium ion की batteries होती है. This is a big sector because EV is growing, उसकी वजह से ये batteries का waste is also growing. And e-waste includes आपके appliances which is TV, refrigerators, all those things. तीनों के अंदर formal recycling and organized sector is very low, स्पेसिफिकली इन बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट, बिकॉज उसके अंदर आपको केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट्स चाहिए होते हैं. बेसिकली रफ देखा जाए तो प्रोसेस की यू नीड अ श्रेडर जो अलग करेगा चीजों को, यू नीड अ क्लीनर, एंड देन यू नीड अ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जो इसमें से सारे एलिमेंट्स को, मटेरियल्स को रिकवर करेगा, देन यू सेल इट. ऊपर से तीनों की वेस्ट प्रोसेस ऐसी ही होती है. सो देयर इज सम हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिसिंग है अभी इंडिया में. नाउ कमिंग टू डिजिटलाइजेशन एंड ट्रेसिएबिलिटी, बिकॉज EPR पॉलिसी इज बीइंग पुश्ड अ लॉट, बट अभी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हुआ है. इसकी वजह से नाउ वी नीड टेक इनेबल्ड प्लेटफॉर्म्स, EPR क्रेडिट्स की ट्रेसिबिलिटी और कंप्लायंस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स. Now, since this has been pushed in FY23, now we will see startups which are coming up specifically for this space. Next, how the whole system works.
सो एज आई टोल्ड बिफोर, जनरली आपको एक परसेंटेज पे करना होता है, लाइक प्लास्टिक के लिए 70% है, FY26 से वो 100% हो जाएगा। तो अगर मैं 100 किलो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रही हूँ तो मुझे 100 किलो निकाल के फ्रॉम द मार्केट उसको पूरा रिसाइकल करके शो करना है। दिस होल सिस्टम इज ऑनलाइन, इट इज पोस्ट ऑन अ पोर्टल। तो दिस पोर्टल के लिए जो रूल्स ऑफ फॉर्मेशन रेगुलेशंस होते हैं वो बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये सारी जो क्रिएशन और फैसिलिटेशन होता है वो पोर्टल पे होगा। दिस पोर्टल इज रन बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब इसमें क्या होगा, जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं और जो ब्रांड ओनर्स हैं, ऑल ऑफ देम हैव टू गेट रजिस्टर्ड ऑन दिस पोर्टल। एंड उनकी हेल्प करेंगे इन इस पूरी प्रोसेस को फैसिलिटेट करने में। वन इज रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स विच आर प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर ऑर्गेनाइजेशंस जो रजिस्टर करके पोर्टल पे, उनका काम यही है, दे आर गोइंग टू हेल्प यू डू द होल EPR compliance. They're gonna help you track all your waste, कितना आपको करना है, कैसे करना है। These organizations help with that. Then you can obviously do in-house recycling, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है लाइक कोका कोला एंड सो ऑन, वो अपनी ही फैक्ट्रीज के अंदर एक इन-हाउस रिसाइकलिंग प्लांट सेटअप कर देते हैं, जिससे वो वहीं पे करते रहे, उनको बाद में कंप्लाइंस की दिक्कत ना हो। और यू कैन यूज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो इन तीनों चीजों से क्रेडिट्स जनरेट होते हैं। ये क्रेडिट्स ये PIBOs कलेक्ट करते हैं और इन क्रेडिट्स के थ्रू वो अपनी EPR ऑब्लिगेशन मीट करते हैं, विच इज एज आई टोल्ड यू कि लेट्स से 100 kgs पे 70 kg प्लास्टिक की मेरी EPR की एक ऑब्लिगेशन आ रही है। उस ऑब्लिगेशन को क्लियर करने के लिए मुझे क्रेडिट्स चाहिए। एक क्रेडिट लेट्स से 1 ton ऑफ प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल को रिसेंबल करता है। सो दिस इज हाउ द होल सिस्टम वर्क्स। यहाँ पर अभी किसी को डाउट है? हम इन क्रेडिट्स को मोनेटाइज भी कर सकते हैं। हाँ, वी कैन मोनेटाइज दिस। इसके लिए अलग अलग तरह के स्टार्टअप्स और प्लेटफॉर्म्स होते हैं। जनरली यू कैन सी कि प्लास्टिक के लिए जो PET वगैरह है, उसका प्राइस जनरली रेंजेस फ्रॉम 6,000 to 20,000 पर किलो। तो इसके लिए एक हमें लिमिट पहले रीच करनी पड़ती होगी ना, कि उसी के बाद हम मोनेटाइज करना शुरू कर सकते नॉट मीन्स लाइक आपने अपनी ऑब्लिगेशन, इट वर्क्स अ लिटिल बिट लाइक GST। हमने अपनी ऑब्लिगेशन खत्म कर दी, उसके बाद भी हमारे पास क्रेडिट्स बच गए हैं, तो वी हैव अ सरप्लस, वी कैन सेल नो सरप्लस, बट पहले हम अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट करेंगे उसके बाद, राइट? तो अब so for example I am a producer and मैंने अपना obligation meet नहीं किया तो I can buy those Yeah, credits you from can you. yeah, So I will be able to meet the requirement. या तो द रीजन हम इसे सर्कुलर इकोनॉमी में लेते हैं इट्स बिकॉज हम पूरा एक सर्कल जनरेट कर रहे हैं वहाँ पे, कि जिसके पास सरप्लस है वो बेच सकता है, जिसकी ऑब्लिगेशन नहीं मीट हो पा रही वो खरीद लेगा। ठीक, तो दिस इज हाउ दिस होल सिस्टम वर्क्स। मूविंग ऑन, so this is the whole ecosystem. I have divided the space based on all the players जो इस पूरे circle में काम करते हैं। First of all is of course our waste disposal plants. These are our hard plants जो ये पूरा waste management कर रहे हैं। इसमें आते हैं Let's Recycle, एक company है, this is by Nepra, it's a very old company 2000 से it is managing dry waste. It is slightly automated as well, but बहुत ज़्यादा नहीं है। Another is GEM. This is also a company which is very old and generally इस sector के इस player में हम लोग देखेंगे they are very capex heavy. So वहाँ पे also we will discuss कि angel investment के लिए कौन सा friendly है हमारे लिए। तो waste disposal plants में there is a lot of white space कि we need affordable tech जो ये कर पाए, which is less capex heavy, क्योंकि tier 2 और tier 3 cities में इसका penetration बहुत कम है। तो हमें rural areas में भी ये facilities चाहिए, तो वहाँ पे पेनिट्रेशन ज्यादा करने के लिए वी नीड अफोर्डेबल टेक, सो दैट इज द वाइड स्पेस फॉर द फर्स्ट प्लेयर। Coming to tech innovators, Regrip is one of our portfolio companies. Shunya is something I screen once a while. So what tech innovators do is they bring innovation in the practice of waste recycling. So they will create some sort of innovative product या तरीका जिससे हम लोग टेक वो वेस्ट रिसाइकल करना इज बिकमिंग मोर एफिशिएंट, स्केलेबल। तो रिग्रिप क्या करता है, इट हैज मेड अ वे इन विच जो रीयूजेबल पार्ट होता है एक टायर का, उसको वो वापस एक टायर बनाता है उससे, और जो अनयूजेबल होता है उसको वो सेल कर देता है, रीसेल कर देता है। हर्षिता कैन टेल यू मोर। तो रिग्रिप इज इनोवेटिंग देयर। शून्य ने सेम किया था, दे हैड मेड अ, जो हम लोग बैटरी की रिसाइकलिंग करते हैं तो मैंने बताया था उसमें श्रेडर्स होते हैं। तो जो एक्चुअल श्रेडर का काम होता है वो अलग अलग तरह की बैटरीज में से एलिमेंट्स निकालते हैं। उसमें क्या दिक्कत आती है कि आपको अलग अलग बैटरीज के जो टाइप्स हैं वो अलग करने पड़ेंगे, तो बिफोर द श्रेडर कैन इवन डू इट्स जॉब 10-15 दिन उस सेपरेशन में ही लग जाता है। सो दे हैड मेड अ डिवाइस विच कुड डू दैट बेटर। ऑटोमेशन लेके आए थे ये लोग प्लांट्स के अंदर, और भी चीजें करते हैं, बट दैट इज समथिंग आई लाइक अबाउट देम। Coming to organizers, they are people who are using AIML or platform or something like that to
bring organization to the unorganized sector, informal sector like scrap uncle. We all know कि वो कबाड़ी वाले जितने भी होते हैं उनको ऑनलाइन किया. सेम इज पेपरमैन फाउंडेशन ऑल्सो डज समथिंग सिमिलर. जो इनफॉर्मल पिकर्स होते हैं ना, जो 10-10 किलो के लिए दिन के एंड में वेस्ट चेंज करते हैं, उनको वो ऑनलाइन लेके आए थे. तो दिस इज समथिंग डिफरेंट. ऑर्गेनाइजर्स एंड देन देयर इज कंप्लायंस इन ईपीआर क्रेडिट प्लेटफॉर्म्स. यहाँ पे जो सेलिंग आप बता रहे थे ना कि सरप्लस और खरीदने का होता है, वो सारा यहाँ पे हो सकता है. These are platforms who will give you a whole suite कि हम आपकी पूरी ईपीआर की जो जर्नी है वो तीनों चीज में, प्लास्टिक वेस्ट में भी, बैटरी वेस्ट में भी, और क्या कहते हैं ई वेस्ट में भी, वो पूरी ट्रैक करके आपको सारे क्रेडिट्स वगैरह देंगे. रिसाइकल इज वन ऑफ द बिगेस्ट वन. इनका एक रिसाइकल 8 करके भी चीज है जिसमें दे सोर्स सस्टेनेबल मटेरियल्स. तो आप उनकी प्लेटफॉर्म पे जाके सस्टेनेबल मटेरियल्स तक यूज कर सकते हो. एंड दे हैव अ होल मार्केट प्लेस वेयर यू कैन गो बाय एंड सेल क्रेडिट. And of course वो compliance में भी help करते हैं. करो संभव is also doing something similar. हमारे लिए I believe सबसे best point is of course tech innovators के अंदर R&D cycles लंबी होती हैं because they have to bring innovation. तो ऐसा कोई startup which is in early commercialization stage would be a good entry for us. Coming to organizers, ये operation heavy होते हैं because they have to build a whole network. Again tier 2 tier 3 cities के अंदर penetration is less. बट समथिंग जिनका थोड़ा सा फाउंडेशन बिल्डअप हो गया है, वहां पे वी कैन मोस्ट पॉसिबली इन्वेस्ट. कंप्लायंस इन ईपीआर क्रेडिट प्लेटफॉर्म्स में रिसाइकल एंड करो संभव आर ह्यूज. ऑल द बिग कंपनीज यूज देम. दे आल्सो यूज देयर इन हाउस. तो इसमें एमएसएमईज के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ वाइट स्पेस कि आप कुछ अफोर्डेबल लेके आए जो वो भी यूज कर सके. एंड ऑफ कोर्स टियर 2 टियर 3 सिटीज में तो पूरे सिस्टम में ही काफी वाइट स्पेस है. सो दिस इज अबाउट ईपीआर का इकोसिस्टम एंड हाउ द होल लैंडस्केप लुक्स. इसमें कोई डाउट है? वो नेक्स्ट अभी इक्वलेटिंग आएगा. नेक्स्ट, moving on to the carbon credits trading system. This comes under air pollution and management tech. So it's a market based system जिसमें basically जो हम carbon emissions करते हैं उनके ऊपर it puts a price. You can convert them into carbon credits and sell them and buy them. Right. इसमें एक कार्बन क्रेडिट generally represents the right to emit 1 ton of CO2 gases. So what's the general flow is कि we are going to track our emissions. हम लोग कितने emissions कर रहे हैं उनको कम करेंगे, measure करेंगे, उसका credits बनाएंगे and then we can monetize it. Right. So dividing this sector on two bases. One is carbon footprint awareness and other is carbon credit trading system. In footprint awareness, this is the starting point. This is the where you have to track your scope 1, 2, 3 emissions. स्कोप 1, 2, 3. स्कोप 1 इज कि मेरी कंपनी है, मैंने फैक्ट्री डाली है, उसमें मैंने बॉयलर्स लगाए हैं, बॉयलर्स से पोल्यूशन हो रहा है, तो वो कितना हो रहा है, दैट इज योर स्कोप 1. स्कोप 2 वुड बी कि मैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही हूँ अपनी फैक्ट्री के अंदर, तो दैट इज अन इनडायरेक्ट कि उसकी वजह से भी एमिशंस हो रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एमिशन क्रिएट करती है. थर्ड इज कि मेरी पूरी वैल्यू चेन में कितना हो रहा है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे सप्लाई चेन की वजह से कितने एमिशंस क्रिएट हो रहे हैं, दैट इज स्कोप 3. तो दिस बिकम्स अ वेरी बिग हैसल फॉर बिग कंपनीज टू ट्रैक देयर स्कोप 1, 2 and 3 emissions. Also scope 1 and 2 emissions are part of DRSR report जो हमने ऊपर डिस्कस की थी. तो वो आपको वहाँ शो करना होता है. तो all top 1000 listed companies have to show this compliance. Right, so this becomes important. Second, carbon credit trading system is where credit creation, monetization और वो सब चीजें होती हैं. Gonna discuss both of them one by one. राइट. कार्बन फुटप्रिंट अवेयरनेस हमने थोड़ा सा भी डिस्कस कर लिया. इसके अंदर 3 चीजें आ जाती हैं हमारी. एक तो कार्बन अकाउंटिंग एंड ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक जिसमें इको रेटिंग्स आएगा जो आपके एमिशंस वगैरह ट्रैक करने में मदद करेगा. दे आर गोना मेक ESG रिपोर्ट्स, environmental social governance reports बनाएंगे. तो this is something they help in. And step change is also another company which is a very big company doing the same. Second is a remote imaging monitoring. These are people who use laser technology and other technology to map कि आप एक एरिया से कितनी ज्यादा कार्बन एमिशंस कर रहे हैं. राइट, दे यूज सैटेलाइट इमेजिंग एंड जियोस्पेशियल एनालिटिक्स. तो इसके अंदर बहुत स्टार्टअप्स मिलते हैं. जो ट्रेसेक्स एक बार मानवी और मैं गए थे साथ में, वो भी यही कर रहा था. दे वर ऑल्सो गिविंग अ स्वीट, उस पर भी बात करेंगे. तो दिस इज ब्लू स्काई एनालिटिक्स इन सैटश्योर. Very capex heavy businesses, they have very long R&D cycles, so that becomes a problem here. Then there is verification in MRV tech. MRV is measurement, reporting and verification.
तो यहाँ पे होता है कि आपने अपने कार्बन फुटप्रिंट्स ढंग से ट्रैक किए हैं, हम इनको क्रेडिट्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते। दिस बिकम्स अ बॉटलनेक अक्रॉस द होल चेन। अगर यहाँ पर काम ठीक से हो तो आगे की पूरी जर्नी आसान हो जाती है। तो दिस इज वेयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर आर गुड स्टार्टअप्स जो एक्चुअली नो दीज आर नॉट वेरीफाइंग कार्बन क्रेडिट्स। कार्बन क्रेडिट्स वेरीफाई करने के लिए देयर आर ग्लोबल बॉडीज कॉल्ड वेरा, गोल्ड स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क पे वो काम करती हैं। दे डू ऑल द वेरिफिकेशन एंड गिव यू अ सर्टिफिकेट कि ये कार्बन क्रेडिट एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। व्हाट दीज वेरिफिकेशन एंड एमआरबी टेक कंपनीज डू कि वो आपको तैयार करेगी। Basically they will ensure कि आप सारे standards fulfill कर रहे हो, so you can get your credits verified by the global standards. So this becomes a bottleneck here. Now इसके अंदर it's important कि of course verification MRB tech affordable है, that is a wide space. Remote emission monitoring की it requires patient capital because again इनकी क्या कहते हैं जो प्रोडक्ट वो साइकिल सेल साइकिल्स भी बहुत लंबी होती हैं. It takes a lot of time. कार्बन अकाउंटिंग एंड ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म्स इज समवेयर वी कैन एक्चुअली इन्वेस्ट दिस, क्योंकि इसके अंदर B2B SaaS स्टार्टअप्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं. मूविंग फॉरवर्ड टू कार्बन क्रेडिट्स ट्रेडिंग सिस्टम. इसका फ्लो चलता है कि देयर आर टाइप्स ऑफ मार्केट्स, टू टाइप्स ऑफ मार्केट्स. दोनों मार्केट्स के अंदर क्रेडिट्स क्रिएट होते हैं. क्रेडिट्स वी कैन बाय एंड सेल. Tokenize is a very new thing coming in the market using blockchain, and we will talk more on that. So there are two types of carbon credit trading market. One is voluntary and one is regulated. India was working in the voluntary market until now. April 25 में they have started a regulation जिसके ऊपर आप voluntary register कर सकते हो, and by late FY 26 India is going to move to the regulated market. So this whole sector is going to grow very fast क्योंकि FY 26 के end तक India regulated market बन जाएगा. Regulated market is something we generally see in developed countries. Like Europe has its ETS system. India is also naming its carbon credits trading system and ETS, which is emission trading system. California has cap and trade. So both of them have their own regulated market. UN का सबसे पुराना है. It has been working since 2005. So what they do is कि they will put a regulation, they will put a cap on the carbon emissions for the for the whole industry कि हमारी पूरी economy let's say 1000 टन emission करेगी पूरे साल में. देन ये जो 1000 टन एमिशन होगा ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स, एंड डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर फिर और डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिटवीन डिफरेंट कंपनीज. नाउ दे डू ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसके बेसिस पे वो डिवाइड करते हैं. ऑप्शन भी किया जाता है कई जगहों पे, कुछ सेक्टर्स के अंदर आप पैसे लगाओ आपको और राइट मिल जाएगा. सो दिस बिकम्स अ राइट टू एमिशन कि ओके हमारी जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री के पास 100 टन का राइट है, तो सीमेंट इंडस्ट्री एज अ होल इतना ही कर सकती है. अगर आप इससे ज्यादा करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगाएगी. So that's how regulated market works. And India is building its own regulated market by late 2026. Voluntary registry to start in 2025. April में start होगी voluntary registry. Voluntary market के अंदर companies like Infosys track and reduce their carbon emissions क्योंकि उन्हें neutrality pledges दे रखी हैं. जैसे EV5 on its own कर रहा था, वैसे ही voluntary market में भी companies अपने आप जो facilitate कर रही हैं ये पूरा वो करते हैं. And trading अभी भी हो रही थी. ऐसा नहीं है कि कार्बन क्रेडिट्स ट्रेडिंग इज अ न्यू सीन इन इंडिया. 2005 से पहले तक वी यूज्ड टू यूज फॉरेन इंफ्रास्ट्रक्चर टू ट्रेड. यूएन का मार्केट बहुत पुराना है तो हम वहां पे करते थे ट्रेड. उसके बाद प्राइवेट मार्केट्स आने लग गए 2010 के बाद. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स रेगुलेटेड मार्केट. So how this startup ecosystem looks like is there are three kind of players. One is carbon credit creation startups, then you have marketplaces, and then you have tokenization and digital carbon assets. कार्बन क्रेडिट क्रिएशन दो तीन तरीकों से हो सकता है. ऑफ कोर्स यू कैन वर्क इन सोलर एनर्जी में काम कर सकते हैं, उससे होता है. देयर आर आल्सो कार्बन प्रोजेक्ट्स, कार्बन कैप्चर प्रोजेक्ट्स जो स्ट्रेट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कार्बन कैच करके उसमें कुछ करते हैं डिफरेंट. वी हैड अ स्टार्टअप इसके अंदर. व्हाट यूज्ड टू डू, वो कार्बन को यूज करके इंजन की जो एफिशिएंसी होती है उसको इंक्रीज कर रहा था. तो इट वाज अ डायरेक्ट कार्बन कैप्चर प्रोजेक्ट. तो ऐसे भी स्टार्टअप्स एंड प्रोजेक्ट्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे. कार्बन क्लीन एंड एयर हो गया वन ऑफ देम. देन कम्स कार्बन क्रेडिट मार्केट प्लेसेस. Eki was one of the oldest one in India, but recently it has been in scrutiny कि there are some transparency issues, but it was the most famous one जो इंडिया में चल रहा था. Second is Credius. यहाँ पे they of course जो verified carbon credits है उनकी trading facilitate करवाते हैं.
Next is tokenization and digital carbon assets. This is a new thing blockchain को use करके, because इस पूरे system में one of the biggest problem is transparency and traceability. Credits actually verify हो पाए, वो पूरी streamline हो पाए, that is a big issue. तो उसको ये थोड़ा आसान कर रहे हैं, verify करके उसमें blockchain लगा के token कर देते हैं. Clients has done actually, इनका model is very interesting. What they do is they facilitate carbon projects. ये carbon projects जो directly काम कर रहे हैं, जैसे carbon clean, उनसे ये लोग credits खरीदते हैं, उसको tokenize कर देते हैं clients के अंदर. Then ये brands के साथ partnership करते हैं. तो let's say I'm a brand, मैं चाहती हूँ कि मेरी brand image अच्छी हो, sustainability वाली हो. तो I partner with clients, and what clients would do, clients के ऐप पे जाके जो ब्रांड्स के कस्टमर्स होंगे, मैंने इस ब्रांड से लेट्स से एक कपड़ा खरीदा, उसके क्यूआर कोड में मुझे 10 क्लाइंट मिल गए, क्लाइंट क्यूआर होगा उसमें, मैंने 10 क्लाइंट्स लिए, मैं क्लाइंट्स के ऐप पे गई, वहाँ ऐप में जाके देयर आर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स विच यू कैन फंड. तो उन्होंने एक अपनी मिनी इकोनॉमी बना रखी है उसके अंदर कि दे बाय एंड दे ऑल्सो फैसिलिटेट. तो मैं एज अ कस्टमर जाके वहाँ पे क्लाइंट्स में जाके स्पॉन्सर कर सकती हूँ अलग अलग. So that's something clients do, which is very unique, and that's it. इसमें यूनिसेल कहाँ पे फिट हो? Cell would fit in यहाँ waste disposal plants, because they are जो बैटरी होती है ना, लिथियम आयन बैटरी, उसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, उसमें एक हेटेरोमेटलर्जी प्लांट चाहिए जिसकी जो वो होता है कन्वर्जन होता है कि वो कितना प्योर एलिमेंट आपको निकाल के देगा, दैट इज 97% प्लस. बाकी जो इंडिया में अभी तक हो रही है, इट्स वेरी बैकयार्ड टाइप ऑफ थिंग, उसमें से 60% 50% ही आप निकाल पाते हो. हाइड्रोमेटलर्जी प्लांट्स की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में इतनी है नहीं, तो दे वर डूइंग दैट. तो यहाँ पे सिमिलर आई थिंक वही था ना, एक जो हमने इवैल्यूएट करे थे जो मुंबई वाले स्टार्टअप से आईटी वाले, तत्वम या समथिंग, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेस में था, उसको वो भी रेज कर रहा था टू कंडक्ट पायलट जो ऑन दिस. आपने भेजा था कि हाँ. कंपेटिटर है. स्टार्ट में बैटिक्स, आई थिंक वो भी यही करता है, वो यूज्ड बैटरीज में से अलग अलग मटेरियल जैसे लिथियम आयन निकाल के और ये सब एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको वापस रीमैन्युफैक्चर करता है. एक्चुअली हाइड्रोमेटलर्जी और लिथियम आयन बैटरी वाली स्पेस इंडिया के अंदर मेजर कंपनीज एग्जिस्टिंग जो ये काम कर रही हैं वो ही कुल 14 बनता है, और जो बड़ी वाली हैं जिनके पास एक्चुअली 2-3 प्लांट्स हों, 2-3 प्लांट्स इज वेरी लेस, बट उनको हम बड़ा कंसिडर करते हैं, वो 4-5 ही हैं. तो उसकी वजह से दिस इज अ बिग स्पेस, बिकॉज ईवी इतना, जितने भी हमारे पास ऑटो रिक्शास चल रहे हैं, इन सबकी लाइफ एंड होने वाली है जो बैटरीज हैं, तो एकदम से बहुत सारी एंड ऑफ लाइफ बैटरीज आर गोइंग टू हिट द मार्केट. तो फिर उसके लिए एकदम से जरूरत पड़ेगी रिसाइकल करने के लिए. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज अ बिग वाइड स्पेस. इट्स अ केपेक्स हेवी सेक्टर. तो जनरली जैसे यूनिसेल है, मींस उन्होंने कमर्शियलाइजेशन, दे आर एट द अर्ली कमर्शियलाइजेशन स्टेज, तो कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट कर रहा है, उनके पायलट्स खत्म हो गए. आई फील लाइक एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए तो फ्रेंडली वही होगा अगर हम उस स्टेज पे एंटर कर पाए, क्योंकि एक बार उनके कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट होगी देन इट वुड बी टू बिग अराउंड फॉर अस. तो जो पायलट्स कर रहा हो या फिर कमर्शियलाइजेशन करने वाला हो या थोड़ा सा 1-2 महीने कर लिया हो, दैट्स वेयर वी कैन एंटर वेस्ट डिस्पोजल प्लांट्स के अंदर. थैंक यू श्वेता. परफेक्ट श्वेता, दैट वाज अ ग्रेट सेशन, और आई अप्रिशिएट कि आपने प्रेजेंटेशन में काफी टाइम लगाया, एंड दिस इज अ गुड ऑफ अ प्रेजेंटेशन.